جدوجہد آزادی ہند میں مسلم علماء کا حصے کے عنوان پر آج شعبہ عربی وومنس کالج کا 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار پرامدا دیوی سیمینار ہال کوٹھی وومنس کالج میں افتتاحی اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر ایم ویجولتا پرنسپل وومنس کالج، چیف گیسٹ ڈاکٹر رویندر یادو وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی اور مہمان اعزازی کے طور پر جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست نے شرکت کی۔ سیمینار سے کویت سے آئے مہمان پروفیسر سید علی عدنان الرفاعی، پروفیسر ڈاکٹر سید جہانگیر حفظ اللہ، صدر شعبہ عربی و ڈین اسکول آف عرب اینڈ ایشین اسٹڈیز انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی حیدرآباد، مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان نے خطاب کیا۔ پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور مقررین کے خیالات۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر ویجولتا میڈم کو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سیمینار وومنس کالج میں منعقد کیے، ہمارے نئے جنریشن کو مولانا آزاد کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے، اور حسن اختر صاحب، شجاعت صاحب، جہانگیر صاحب، مصطفیٰ الرفاعی صاحب، جب بھی مولانا آزاد صاحب کا نام آتا ہے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا، خاص طور پہ ہندوستانی مسلمان کے واسطے۔ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کو نور سے بھر دے، مغفرت کرے، جنت الفردوس میں کرے۔ آزاد کا جو تعلق تھا، ان کے دادا نے نہر زلیخا بنایا تھا، ٹوٹ گئی تھی وہ سعودی عرب میں۔ جب بھی کوئی حاجی مکے کو آتے تھے تو 1900 شروع میں 20 لاکھ روپے جمع کر کے نہر زلیخا کی مرمت کی، اور نہر زلیخا کو پھر سے پانی آنا شروع ہوا حاجیوں کے واسطے۔ دادا کا کیونکہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں میں کہ خاندانی جو سلسلہ رہتا ہے اس کی بہت اہمیت رہتی ہے۔ ان کے دادا کو پھر ٹرکش سلطان نے خطاب دیا اور ان کو بہت بڑے پوزیشن سے نوازا۔ مولانا آزاد کی فیملی ہندوستان سے ہجرت کری تھی، سعودی عرب گئی تھی، کیونکہ وہ وقت کا 1857 کے جو حالات تھے بہت مایوس کن حالات تھے۔ وہ مایوس کن حالات میں وہ سعودی عرب چلے گئے تھے۔ سعودی عرب میں گھر میں ہی تعلیم حاصل کی، کوئی اسکول نہیں گئے۔ مولانا آزاد کو اسٹرکٹلی اردو، پرشین اور عربک میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان کی فیملی کا یہ سسٹم تھا کہ ماڈرن تعلیم سے گریز کرتے تھے، اور وہ مولانا آزاد کو اندرونی طور پہ کھا جاتی تھی کہ ماڈرن تعلیم کیوں نہیں حاصل کرنا مسلمان۔ وہ سر سید سے بہت متاثر تھے، خاص طور پہ انگلش، سائنس، تھیولوجی، لاجک کے اوپر بات کرتے تھے۔ گھر میں چھپ چھپ کر مولانا آزاد نے ایک انگریزی الفابیٹس کی کتاب لی اور انگلش سیکھنا، ABCD سیکھنا شروع کرا۔ اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ 3 کتابیں خریدی ہیں۔ وہ بائبل کا ترجمہ تھا، عربک میں، اردو میں، پرشین میں، اور ایک ڈکشنری لے کے وہ بائبل پڑھتے تھے پرشین میں، اردو میں، اور انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنی جستجو تھی ان کو ماڈرن تعلیم حاصل کرنا، سائنس حاصل کرنا، اور وہ جستجو میں ان کو ایک چیز کھا جاتی تھی کہ جو اس وقت کے اردو اخبار تھے، صرف اردو اخبار ہی تھے جو ہندوستان کے جنگ آزادی میں کام کرتے تھے، رول تھا، چاہے وہ مسلمان رہو، ہندو رہو، سب اردو ہی پڑھتے تھے۔ مولانا آزاد نے جب یہ دیکھا کہ مسلم جو نش اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو نوابہ تھے، جو رجواڑے تھے، وہ پورے برٹش کے غلام تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم عوام کی جب بات کرتے ہیں تو عوام برٹش کے فیور میں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 48,000 علماء کو توپوں سے مارا گیا، جھاڑوں پہ لٹکا دیا گیا، ان کی لاش کو دفن ہونے نہیں گیا، لاہور سے لے کے کلکتہ تک۔ عالموں کا، مولانا کا، مولموں کا
कि ब्रिटिश एक ही स्ट्रैटेजी थी उनके पास कि ये मुसलमान कौम को दबा के रखें। और मौलाना आज़ाद कलकत्ता में थे, वालिद के इंतकाल के बाद 2 साल की उम्र में कलकत्ता आ गए, आई थिंक 1890 में आ गए। मौलाना आज़ाद 1905 में जो लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके रखें। तो और पूरा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स खेली जाती थी वेस्ट बंगाल से। बंगाल पावरफुल था, वहाँ पे ही हुक्मरानी थी, वहाँ पे वाइसरॉय थे। तो मौलाना ने ये करा कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का पहला हिंदुस्तान में जो बुनियाद डाला हिंदू मुसलमान की नफरत की, वो बंगाल में थी। ईस्ट बंगाल में मुसलमान थे, वेस्ट बंगाल में हिंदू थे ज़्यादातर। मगर इनको डिवाइड कैसा करना था कि हिंदू मुसलमान एक वक्त ना आए। 1857 के बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूपी, बिहार, यूनाइटेड प्रोविजन के थे, वो लोगों को बंगाल ला के रखा गया और वो लोग जुल्म करते थे नॉन मुस्लिम्स पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल के लोगों पे। मौलाना आज़ाद को ये चीज़ चुभती थी और मौलाना आज़ाद ने ये कोशिश करा, स्पेशली अरबिंदो घोष के साथ, SS चक्रवर्ती के साथ मिलके, वो ज़माने में एक रेवोल्यूशनरी पार्टी कायम हुई थी बंगाल में। वो पार्टी में सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे और रेवोल्यूशनरी और सीक्रेट सोसाइटीज़ के वैसा काम करते थे ये सब, और ये बंगाल की हद तक महदूद थी। जब मौलाना आज़ाद ने अरबिंदो घोष से मिला, SS चक्रवर्ती से मिला, तो वो लोगों को 2 चीज़ों से थी नफ़रत। एक तो उन लोगों को वो था कि मुसलमान नेशनलिस्ट मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, और दूसरा ये था कि मुस्लिम ऑफिसर्स से अंग्रेज़ ज़्यादती करते थे नॉन मुस्लिम्स पे, वो भी चुभती थी। और वो ये समझते थे पूरी मुसलमान कौम ये आज़ादी के ख़िलाफ़ है। जब मौलाना आज़ाद ने इन लोगों से मिला, रेवोल्यूशनरी से, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, बहुत सारों से मुलाकात की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करा, तो वो इनर सर्कल में कभी मौलाना आज़ाद को आने नहीं दिया 5-7 साल तक, कि उन पे डाउट था कि ये भी अंग्रेज़ों के इम्प्लांट तो नहीं है। मौलाना आज़ाद ने जब उनका कॉन्फिडेंस गेन करा, इनर सोसाइटी में रेवोल्यूशनरीज की गए, तो उनका ये प्रपोजल था, why not we expand this to the whole of country. It was totally a secret societies थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ काम करते थे, उसको भी रिजेक्ट किया गया। उसके थोड़े अरसे के बाद मौलाना की जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट करे और मौलाना को खुद इंचार्ज बनाए कि आप सीक्रेट सोसाइटीज़ पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में बनाएं और बंगाल में बनाएं, बॉम्बे में बनाएं। तो मौलाना का जो प्रपोजल था एक्सेप्ट किया गया। आई थिंक 1909-10 में टर्की गए, सीरिया गए, इजिप्ट गए, वहाँ पे जाके पूरा एजुकेशन सिस्टम समझा, फिर मायूसी होने लगी और वहाँ के रेवोल्यूशनरी से मिले। कमाल अतातुर्क के पार्टी का रेवोल्यूशनरी पूरे दुनिया में फैल रहा था। जब वहाँ पर टर्किश में, इजिप्ट में, सीरिया में वो लोग सवाल करते थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कर रहे हैं। तो मौलाना, क्योंकि उर्दू अखबार चलते थे सिर्फ गवर्नमेंट के इश्तिहारों पे, तो गवर्नमेंट की जी हुजूरी करते थे उर्दू अखबार। जो पब्लिक के जनरल मुसलमानों के जो एहसासात थे वो अखबारों में कभी आ ही नहीं जाते थे। मौलाना आज़ाद ने एक नई रोशनी मिली कि क्यों नहीं हिंदुस्तानी मुसलमान भी नेशनल मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें। और मौलाना आज़ाद आए बाद 2 साल में ये सोचा कि कैसा रीच करना है जनरल मुसलमानों तक, नेशनल स्पिरिट लाना है। वो उनको ये जो रोशनी मिली है टर्किश, इजिप्ट, सीरिया, यहाँ पे मिली। मौलाना आज़ाद ने जब ये काम शुरू करा तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि अखबार निकालना चाहिए हम लोग, अखबार के ज़रिए पूछना। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल निकाला, 1912 में निकाला, 23 साल 1912-13 में 23 साल की उम्र में। तो मौलाना आज़ाद का जो अखबार था वो रिवायती उर्दू अखबार से हट के था, प्रिंटिंग अच्छी थी, एडिटोरियल पॉलिसी जो थी वो आवाम की
रहनुमाई करती थी। उसकी वजह से अल हिलाल 3 साल के अरसे में इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलेटेड उर्दू न्यूज़पेपर हो गया था। 26,000 उसका सर्कुलेशन था। मैं आज बैठ के सोचता हूँ कि 26,000 सर्कुलेशन 1912 13 14 में आना बहुत बड़ी बात है। कैसा वो, हम लोग को याद है, हम बचपने में थे, सुनते थे अपा उन लोगों से कि रात तमाम मशीनें चलते थे, लिथो मशीनों पे अखबार चलता था, पत्थर का प्रिंट था। तो उस वक़्त मौलाना आज़ाद ने जो मुसलमानों को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाया, पहले मौलाना आज़ाद को ये उर्दू अखबार के, अलीगढ़ तहरीक वाले पूरे ख़िलाफ़ थे मौलाना आज़ाद की तहरीक से। अलीगढ़ तहरीक तो ये थी कि अंग्रेज़ी सीखो और ये ब्रिटिश की ग़ुलामी करो, ब्रिटिश के सिवा हमारे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, हिंदू और मुसलमान में दरार और बढ़ रही थी दोनों के। और मौलाना आज़ाद का जब अखबार निकला अल हिलाल, तो ये दरार कम हुई। रेवोल्यूशनरीज़, बंगाल के रेवोल्यूशनरीज़ पूरा मौलाना आज़ाद के साथ आए। मौलाना आज़ाद को 2,000 रुपये का फ़ाइन किया गया, क्योंकि अखबार में आप एंटी ब्रिटिश प्रोपोगंडा करते हैं, अखबार में एंटी ब्रिटिश प्रोपोगंडा करते हैं। फिर 2000 के मौलाना आज़ाद का ये बोले कि रोने का वक्त नहीं है, आप ऑल इंडिया रेडियो पे जाके अनाउंस करिए कोई मुसलमान नहीं मारा, गांधी जी को मारा तो RSS वाला मारा। ये जो साजिश थी मुसलमानों को पार्टीशन में ख़त्म करने की, गांधी जी के डेथ के बाद भी मुसलमानों को ख़त्म करने की, वो एक स्पीच, आज हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, मगर वो एक स्पीच, उस वक्त रेडियो ही बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन का मीडिया था, वो एक स्पीच ने वो RSS के लोगों को या राइटिस्ट लोगों को उस वक्त के रुका दिया, सेकेंड मैसाकर करने के बाद मुसलमानों के। तो मैं समझता हूँ मौलाना आज़ाद का जो रोल था हिंदुस्तानी मुसलमान या दुनिया के मुसलमान में, वो ताक़यामत तक उनका रोल गोल्डन सुर्खियों में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूँ उनकी तालीमात को और भाईचारगी की तालीमात को लेके चले। और एक ख़राब इंसिडेंट भी गोशे गुज़र कर जाऊँगा। जब मौलाना आज़ाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहली होली मनाई गई, तो मौलाना आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर को कीचड़ में लिटा के होली खेली गई। तो वो वही हालत में सरदार पटेल के पास होम मिनिस्टर थे, उनके पास गए, ये देखिए आप, मेरा ये हालत है, मैं यहाँ रह के इतना फाइट करा। तो सरदार पटेल ने कहा कि हमारी ईद है, इसमें खुशी होती है, आप भी खुशियों में शामिल हो। तो ये मौलाना आज़ाद का विज़न था। मैं समझता हूँ पायनियर्स बोलना चाहिए, विजनरी तो नहीं बोलना चाहिए, कि वो हमारे पायनियर थे। और आज 70 साल में एक मौलाना आज़ाद नहीं पैदा कर सके हम, और वही पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की खेली जा रही, और हम उसके छोटे छोटे मोहरे बने हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना आज़ाद की छोटी छोटी आर्टिकल्स लिख के ख़ास तौर पे यंग बच्चों के सामने पेश किया जाए, और ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स के सामने कितना बड़ा रोल था। और मौलाना आज़ाद जब इंडिपेंडेंस की तहरीक रहा है तो एक ही ज़बान फाइट करती थी, वो उर्दू ज़बान थी। हिंदू भी उर्दू बोलते थे, मुसलमान भी उर्दू बोलते थे। मैं शुजात कादरी साहब का और प्रिंसिपल साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ज़माने में ऐसे भी प्रिंसिपल हैं जो अच्छे सेमिनार कर रहे हैं। शुक्रिया बस, थैंक यू।